सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो हमारी नींद उड़ा दे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि शर्मा और आप देख रहे हैं प्रतिनिधि मंथन। भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता था। वह बतौर भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर पूरे देश में मशहूर थे। उनका मानना था कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपने ठान लिया कि सपना पूरा करना है और उसके लिए मेहनत और परिश्रम किया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उनके विचार, उनकी बातें आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करती है। कलाम सर ने बतौर साइंटिस्ट और इंजीनियर इसरो और डीआरडी को संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम व सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। कलाम सर ने 1974 में भारत की पहली मूल परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक, संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सर को भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से 2002 में राष्ट्रपति चुना गया। 5 साल राष्ट्रपति रहने के बाद कलाम सर शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लग गए। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और इसके अलावा भी कई पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किए। 15 अगस्त 1931 को धनुषकोडी, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। कलाम सर के पिता जैनुलब्दीन ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही पैसे वाले थे। वो मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देकर घर का खर्चा चलाया करते थे। कलाम सर एक संयुक्त परिवार में पले बड़े थे। कलाम सर के परिवार को मिलाकर उस घर में 3 परिवार रहा करते थे। कलाम सर खुद 5 भाई और 5 बहन थे। नन्हे से कलाम की जिंदगी पर उनके पिता का बड़ा प्रभाव रहा था। भले अब्दुल कलाम के पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और मेहनत ने हमेशा कलाम सर को प्रेरित किया। उनके दिए संस्कार कलाम सर की जिंदगी में बड़ा काम आए। कलाम की प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से ही हुई। भारत के पहले स्वदेश उपग्रह SLV-3 को बनाने और फिर अंतरिक्ष में भेजने तक के सफर में उनका बड़ा योगदान रहा। 1979 SLV-3 satellite launch vehicle, I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in the orbit. Thousands of people worked nearly 10 years. I reached the Sriharikota and it's in the launch pad. Countdown was going on. T-minus 4 minutes, T-minus 5 minutes, T-minus 1 minute, T-minus 40 seconds. Computer put a hold, don't launch it. I am the mission director, I have to take a decision. Everything is on. Behind me there are 6 experts. They saw computer database coming in and screen, and they see the pictures in the screen. They said there's a problem. The problem is there's a leakage in the system, in the control system. But immediately calculation, no problem. We have got sufficient fuel and oxidize for control system is control the rocket to required altitude, and we can go ahead. Now, of course, my expert's view, but I took the decision. Problem is mine. So finally, I took a decision. I bypassed the computer and launched the system. Okay, this fellow went. First stage worked in the 4-stage rocket, and second stage got manned. It went to spin. Instead of putting the satellite in the orbit, it put in the Bay of Bengal. 1979, it was a failure. It was a failure. First time I experienced my failure. How do you manage the failure? Success I can manage. So at that time, we have a great man, we have a great leader, also Satish Dhawan. He comes to me, I am very tired working nearly for months. He makes me up, come, let us go for a press conference. What Satish Dhawan said, Chairman, Indian Space Research Authority said, dear friends, we have failed today. And then media asked, you have put Bay of Bengal so many crores, we have put it. Like that, a lot of criticism. He received the criticism. He assured them in a year we will succeed with our team. It's a very good team. But next year, July 18, 1980, when he succeeded, Professor Dhawan said, you go and conduct the press conference. Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up.
When the success came, he used to 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का वो हिस्सा भी थे। वैसे तो वो अपनी कई सी बातों और कामों के लिए मशहूर रहे, लेकिन अग्नि और पृथ्वी मिसाइल उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान थे। कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम सर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMM में शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलोर के मानद फेलो और विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्होंने कई अंतरिक्ष इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग करवाने वाले संस्थानों से नाता जोड़ लिया। उन्होंने बेंगलोर, बनारस, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम आदि के विश्वविद्यालय में भी पढ़ाना शुरू कर दिया। कलाम सर ने 2012 में देश के युवाओं के लिए मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूं के नाम से एक कार्यक्रम करवाया, जो भ्रष्टाचार हटाने के एक केंद्रीय विषय पर था। कलाम सर ने अपने जीवन में हर रोल को बेहद सादगी और पूरी सफलता से निभाया है, चाहे फिर वो एक बेटा बनना हो या फिर देश का राष्ट्रपति। उन्होंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में रहने लायक ग्रह पर लेक्चर दे रहे थे कि तभी उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। हाबड़ में उन्हें बेथानी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें ICU में भर्ती कर लिया गया और 2 घंटे बाद करीब 7:30 के आसपास डॉक्टर ने उनके निधन की पुष्टि की। अपने निधन के 9 घंटे पहले उन्होंने IIM शिलोंग जाने की खबर ट्वीट की थी। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम सर के पार्थिव शरीर को गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जिसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम सर को सबने श्रद्धांजलि दी और पुष्पहार अर्पित किया। फिर दिल्ली से कलाम सर का पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि रामेश्वरम ले जाया गया, जहां एक बस स्टैंड के पास आखिरी श्रद्धांजलि का इंतजाम किया गया और 30 जुलाई 1915 को पूर्व राष्ट्रपति कलाम को पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। कलाम ने अपने साहित्यिक विचार भी 4 किताबों में संजो दिए, ताकि उनके चाहने वाले उन्हें पढ़ सकें और कलाम सर को याद कर सकें। इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया उनकी लोकप्रिय किताब है। इन किताबों का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है और कलाम सर की ये किताबें देश विदेश में हर जगह मशहूर हैं।